Hello everyone, welcome to MBA Karo. Many examinations, MBA entrance examinations like NMAT, MAT, MHCET, TISNET, MyCat, etc. They ask you DI, which is calculation based, and it is not that heavy calculation based, but normal calculation. Many of the candidates find these questions time consuming. Those who are slow with calculations have a fear about data interpretation. In this video, I'm going to teach you certain tricks which can be applied in some of the questions, and you can drastically reduce the time you take to solve such questions. Most of the candidates do not know about these techniques. They solve using the conventional method and end up taking more time in solving questions. So if you watch this video completely, after this video you will realize that okay, there are a lot of kind of questions that can be done much faster than you have been doing till now. So let us begin about these things. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe to my channel for valuable content on MBA preparation. You can also join my Telegram group and get any assistance related to MBA prep. First thing is percentages. It is a very important concept, not only for your quantitative aptitude but also for data interpretation. Many a times we come across numbers like 12.5%, 16.67%, right? Like 8.33%. So, what is the value of these numbers? It is very valuable. Let us say, if I say that the cost of some thing is given to us, right? Let us say cost of some laptop is given to us, and it reduced by 12.5%, and they ask you that what is the new cost. So it should be on top of for your mind that 12.5% is 1 by 8. Okay, so 1 by 8 is 12.5%. That means we can easily divide 88 by 8. We can say that 11. So if you reduce 11,000 from it, you get 77,000. So instead of multiplying 12.5 into 88, you can simply use 1/8. Okay, similarly, like 1 by 12 is 8.33%. So if I say that it is let us say some value is 54,000 and it increases by 8.33%, so what will be the new value of this thing? So if you have to find this, let us just find out 54 by 12. 54 by 12, 12 fours are 48, and 660, so 4.5, so 4.5 thousand. So after increase it will become 58,500. So knowing these percentages really help you to fasten up your calculations. So whenever you see 25%, it should automatically come to your mind that you have to divide by 4. Okay, whenever you see 20%, you have to divide by 5, etc. So that was one of the things. Next technique in some places that is helpful is finding difference. Let us say you are given graph or table, any sort of thing, and you are asked to find a difference and difference of the totals. Okay, so basically difference of totals. Now, what would a normal person do? A normal person would add the number of boys and the number of girls and then find the difference. ऐसे ही करेंगे लोग. बट देर इज अ बेटर वे टू डू. सो कभी भी इस तरह का सिनेरियो पूछा हो कि दे हैव गिवन यू द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड आस्क द डिफरेंस बिटवीन द टोटल. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर what we will do is, let us say we have to find boys minus girls, so individual find कर लेते हैं. ठीक है, so this number is 32, this number is 25, so difference is 7. This is 35, this is 28, again difference is 7. यहाँ पे वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 27 एंड दिस वैल्यू इज 30. नाउ सिंस यू आर कैलकुलेटिंग बॉयज माइनस गर्ल्स, राइट, यहाँ पे ध्यान देना, मिस्टेक नहीं करनी है. वी विल टेक दिस वैल्यू एज -3. वी आर कैलकुलेटिंग बॉयज माइनस गर्ल्स. यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0. दिस इज 5 मोर एंड 6 मोर, सो -6. ठीक है, ये कर दिया. अब इन सबको जोड़ देते हैं. जस्ट ऐड दीज वैल्यूज.
So 14 minus 9 is equal to 5. So the difference will come as 5. Now you would have taken much longer to add these numbers. ठीक है, आपको 5 नंबर ऐड करने होते, फिर 5 नंबर दोबारा ऐड करने होते. ठीक है, तो कितने कैलकुलेशन हो गए, 5 नंबर का एडिशन, 5 नंबर का एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. What we did instead, we found these values which are small and easy to add. ठीक है, छोटी वैल्यूज हैं, इजीली ऐड हो सकती हैं. इमेजिन दिस हैपेंस विद बिगर नंबर्स, देन योर टास्क बिकम्स इवन इजियर. Okay, next is finding average of graphs. ठीक है, how to find averages? We are taught कि take the sum of all the values and divide by the number of items. ऐसे ही बताया जाता है हमें. ठीक है, तो हम करते भी वैसे ही. अगर आपको मार्क्स ऑफ स्टूडेंट निकालने होंगे, आप ऐसे करोगे 77 प्लस 91 प्लस 82 प्लस एंड सो ऑन अप टू 79. फिर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे निकालते हो. Do not do this thing. Now see, whenever you have these kind of values, what we will use is, we will use the deviation method. Deviation method में क्या करना होता है? We have to assume an average. ठीक है, and the average will be assumed average plus or minus deviation upon number of values. ठीक है, so that is the average. Okay, so if you see, this average lies between the highest and lowest values, right, somewhere in between. Now let us find a rough estimate. Again, as I say that this number can be anything. ठीक है, आप 80 भी ले सकते हो, 82 भी ले सकते हो, 83 भी ले सकते हो. लेट मी से दैट द एवरेज इज, चलो एक काम करते हैं, 82 ले लेते हैं. यू कैन टेक 84 85, कुछ भी ले सकते हो आप. ठीक है, इट डज नॉट मैटर, आपका आंसर वही आएगा. हमने एक मान लिया 82 एवरेज है. सो अवर अज्यूम्ड एवरेज इज 82. नाउ व्हाट वी विल डू इज, we will subtract 82 from each of these numbers. ये आपको करना, मतलब ऐसे लिखना नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू टू हाउ टू डू दिस. So if you subtract 82 from all of these numbers, so that is the deviation. अब ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा. 82 77 minus 82 is -5. ये 9 हो जाएगा. This will be 0, this will be 1, this will be 6. Okay, this will be 4, this is 0 again, and this is -3. ठीक है, -3 हो गया. अच्छा, अब क्या देखते हैं, so if we see this, 5 minus 3, -5 and -3 is -8. ओके, और अगर हम 9 में से 8 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 1. सो व्हाट वी गेट, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12. So we get a deviation of 12 upon number of values is 8. So 8 values means 1.5 आ जाएगा. So 82 plus 1.5, we will get 83.5. Now this does not mean that you have to find the average. आप कुछ भी assume कर सकते हो. Let us take another example. If I assume the average to be 84, will I get the same answer? Yes. करके देखते हैं, 84 रख के देखते हैं. So instead of 82, I assume the average to be 84. ठीक है, मैंने मान लिया कि average 84 है. ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर कहीं पे ऐसे लाइन बनेगी. ठीक है, अच्छा, अब 84 में से सारे नंबर से 84 सब्ट्रैक्ट कर दो. सो वी विल गेट -7, एंड इन दिस केस वी विल गेट 7, वी विल गेट -2 -1 4 2 एंड -2 एंड -5 आ जाएगा. 2 - 2 कैंसिल. ठीक है, 7 - 7 कैंसिल. नाउ इफ यू सी दिस इज 3 8 -8 4 -8 -4 आ रहा है. तो 84 हमारा एवरेज था, और -4 हमारा डिविएशन आ रहा है. -4/8. 4/8 इज 0.5. सो 84 - 0.5, 83.5.
So what we see is whatever we assume we will get the same average. So do not put so much effort कि क्या सही assume होगा कि गलत assume होगा. ठीक है, एक कोई सेंट्रल वैल्यू जो आपको मोस्ट लॉजिकली लग रही है. मुझे 82 लगी थी, मैंने 82 ले ली. 83 लगती, 84 लगती, 85 भी लेते, 80 भी लेते, आंसर सेम आता. बट दिस विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, और इस प्रैक्टिस को करोगे तो ये फटाफट हो जाएगा. ठीक है, ये देखो इतना आसान था इन सब नंबर्स को ऐड करना, वरना इन नंबर्स को ऐड करते काफी टाइम लगता. ठीक है, सो अगेन अगर ये 3 डिजिट नंबर्स होते तो फिर आपको और ज्यादा एफर्ट आपका बच सकता है. नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग ऑफ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज. ठीक है, नाउ कभी क्या होता है कि जैसे आपको ग्राफ दिए और कभी पूछा रहता है कि कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है. ग्राफ हो, टेबल हो, यहाँ पे पूछा है विच शॉप सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेन्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. ठीक है, most of the students what they do is they calculate the number of pens sold. नो, उसने पूछा ही नहीं हाईएस्ट टोटल कितना आ रहा है, उसने पूछा हाईएस्ट किसका है. ठीक है, सो क्या हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं? लेट अस सी दिस ग्राफ. सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे इसका हाईएस्ट है, बट यहाँ पे इसका कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया. ठीक है, तो डी तो हाईएस्ट नहीं है. बी यहाँ पे मॉडरेट स्टार्ट किया, पर बी ने फिर कम कम ही बेचा हर बार. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गया, बट इट वॉज गोइंग लो ऑल द टाइम. ए स्टार्टेड मॉडरेटली, यहाँ पे मॉडरेट था, यहाँ पे भी मॉडरेट था. हाई, वेरी वेरी हाई. ठीक है, बाकी सबसे बहुत ज्यादा है. अगेन वेरी हाई कंपेयर टू ऑल ऑफ देम, एंड देन अगेन मॉडरेट. तो ए को हाईएस्ट मान सकते हैं. देखो ए का कॉम्पिटिटर कौन होगा? देखो ए और बी में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इतनी ज्यादा बी ए की सेल यहाँ इतनी ज्यादा थी. राइट, डू नॉट लुक एट द नंबर्स ऑल्सो. आप नंबर्स कैलकुलेट करना छोड़ दो, बट ग्राफ देखो कितना ज्यादा गैप है, इतना ज्यादा गैप है. राइट, तो इसका तो हाई हो ही नहीं सकता इससे. ठीक है, अगर ए और डी को कंपेयर करो, ए यहाँ पे इतना ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है. ठीक है, तो 3 times ए इज मच मोर. यहाँ पे ठीक है डी की सेल ज्यादा है, पर उससे ज्यादा तो यहाँ पे ए ने गैप कवर कर लिया. सो ए डी से भी ज्यादा है. ए और सी को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ए सी से ज्यादा है, यहाँ पे सी ए से ज्यादा है. बराबर हो गया, जितना गैप यहाँ था उतना गैप लगभग यहाँ हो गया. नाउ ए इज मोर, ए इज मोर. ठीक है, सो ए इज मोर देन एनीवन एल्स. सो ए हो जाएगा हाईएस्ट. हाईएस्ट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस वी फिगर आउट दैट ए इज द हाईएस्ट. ठीक है, अब ऐसे हमें लोएस्ट पता लगाना है. लोएस्ट भी हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ये देखो अगर आप बी का ग्राफ देखो, बी का ग्राफ हर जगह कम कम है. ठीक है, यहाँ देखो इससे इतना कम है, इससे इतना कम है, इससे इतना कम है. यहाँ इसने थोड़ा ज्यादा किया, बट अगेन देखो जो डी ने यहाँ इतनी ज्यादा गैप ले लिया था, इतना गैप तो ये कवर नहीं कर पाया. सो बी विल बी द लोएस्ट. सो हाईएस्ट और लोएस्ट बाय जस्ट ऑब्जर्विंग कैन बी फिगर्ड आउट, चाहे वो ग्राफ हो या फिर टेबल हो. ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं राउंडिंग ऑफ वैल्यूज. ठीक है, अब जैसे मान लो डेटा टेबल दी रहती है. ठीक है, सो इट शोज द रोड एक्सीडेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, अब हमें पूछा है कंसिडरिंग ऑल द 5 years टुगेदर व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल ये, इट इज आस्किंग द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज. अब क्या होगा, लोग देख के घबरा जाएंगे, लोग कहेंगे अरे इनका इन नंबर्स को कैसे ऐड करूंगा या करूंगी. राइट, यू फियर ऑफ दोस थिंग्स एंड यू डू नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस बिकॉज दे थिंक कि हाउ विल दे अटेम्प्ट दिस. ठीक है, अच्छा एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं. ठीक है, आप अगर कोई मान लो फोन खरीदते हो. ठीक है, आपने फोन खरीदा 7,250 रुपए का. आप अपने दोस्त को क्या बताते हो? 7,000 का आया. ठीक है, आप ये नहीं कहते 7,250. आपको अमेजन में जो प्राइस दिखता है वो ठीक है. 5,790 का फोन है, सो यू विल से 6,000. ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हो. राइट, वाई डू वी राउंड ऑफ? क्योंकि करने में आसानी रहती है. ठीक है, सो ऐसी राउंड ऑफ इस चीज में कर लेते हैं, isn't it? So let us say you go to some restaurant and pay the bill. The bill comes as 1,218. You say 1,200 का bill आया कहीं, right? You do not specify, in most of the scenarios you do not specify the exact value unless you have to get that value from someone. Okay, so for these things also we must round off. So what we will do is we will round off to the nearest 100. तो इसे हम 116, इसे हम क्या करेंगे 11700 लिख लेंगे. ठीक है, दूसरे वाले को क्या कर लेंगे 120 200, क्लोज है. अगर 50 से कम है, 50 से ज्यादा है तो इंक्रीज कर लेंगे, 50 से कम है तो रिड्यूस कर लेंगे. 111
148,149 कर देंगे और लास्ट वाला भी 149 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 100 वाला पार्ट हटा देते हैं, लेट इग्नोर द जीरोस। क्यों करना कैलकुलेशन, लिखना क्यों इतना? ठीक है, दैट वाज जस्ट टू शो कि हाउ टू राउंड ऑफ एंड हाउ टू राइट द वैल्यूज। ठीक है, अब 5 नंबर, इनका एवरेज तो निकाल सकते हो, इनका एवरेज निकाल सकते हो। अच्छा, इनका एवरेज अगर ये भी बड़े नंबर दिख रहे हैं, लेट अस डू वन मोर थिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, लाइक इनसे भी 100 100 हटा दो, पर इसमें याद रखना 100 जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें 100 ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, अब इनका एवरेज निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 98, 120, 120 प्लस 28, 148 आ गया। 148 बाई 5 कितना होता है? 29.6। ठीक है, हमने क्या किया था, सबसे 100 100 सब्ट्रैक्ट कर लिया था। सो वी विल अगेन ऐड बैक 100। ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए सबसे 100 ऐड कर हटा दिया था। सो वी ऐड 100 बैक, सो दैट विल बी अवर आंसर। मतलब 112,960 के आसपास आंसर आना चाहिए। देखो, रफ रफ कैलकुलेशन किया है। ठीक है, आप 13, आप इसका एवरेज 130 भी बोल दोगे ना, आप कह दोगे इसका एवरेज 30, 130, तो भी आपका आंसर देखो 13,000 के क्लोजेस्ट वाला होगा। दैट इज दिस। एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया ही नहीं, विदाउट डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन वी गेट द आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम, जो भी मैंने आपको बताया था कि डिविएशन मेथड, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? हम मान लेते हैं कि एज ये हमें दिख रहा है, ये एक्चुअल वैल्यूज ये थी। ठीक है, हमने 100 इसलिए रिमूव किया था ताकि हम इजीली ऐड कर सकें। ओके, सपोज ये था, मुझे रफ रफ लग रहा है दो वैल्यूज 150 के आसपास है, 120, तो एवरेज मान लेते हैं 130। ठीक है, -13, -8, -19, +19, +19। सो +19 से -19 गया, दिस इज -2, 130 -2/5, वही 129.6 हो गया। तो रफ रफ 129.6 हमारा एवरेज बन रहा है। सो दैट इज द एक्चुअल आंसर ऑल्सो। सो राउंडिंग ऑफ वैल्यूज हेल्प्स यू अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन विच ईयर डिड द परसेंटेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया ओवर द प्रीवियस ईयर हैड द मैक्सिमम इंक्रीज। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे बड़े से नंबर दिख रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर लेते हैं, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो दिस विल बी 479, this will be 485, this is 486, this is 500, this is 490. So it is saying the percentage of road accidents over the previous at the maximum increase, परसेंटेज में इंक्रीज निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कितने का है? 6 का है, 1 का है, 14 का है। आपको लिखना भी नहीं है, ये आप सिर्फ देख के बता सकते हो। यहाँ पे 14 का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज आ रहा है, और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, ऑलवेज वी कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2018, इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज आ रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। So this is how we round off values, just observe the values and answer. So it is not necessary to do calculations in each and every question. Now, among the charts, the most beautiful is pie chart, wherein we can use a lot of good techniques to solve questions very fast. ठीक है, अच्छा, जैसे ये एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर का है ऑन डिफरेंट आइटम्स, एंड व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, क्लोथिंग एंड यूटिलिटीज। ठीक है, तो कभी भी पाई चार्ट में आपको सम, डिफरेंस, एवरेज कुछ भी निकालना होता है, डू नॉट यूज दिस टोटल इन द बिगनिंग। पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज होती है ना, जो भी अगर आपको एवरेज निकालना है तो परसेंटेज का एवरेज निकाल दो। ठीक है, तो रेंट, क्लोथिंग, यूटिलिटीज, रेंट, क्लोथिंग, यूटिलिटीज, तो रेंट इज 24, क्लोथिंग इज 8 एंड यूटिलिटीज इज 6, तो कितना हो गया 14, 14 प्लस 24, 38%, 38/3 हो गया। ठीक है, 38/3 हो गया, और सिंस इट इज टोटल इज दिस 38/3 का कितने का परसेंट, इतने का, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3। अब इग्नोर कर दो जीरोस को। ठीक है, ये 30,000 है या 300 है, जीरोस इग्नोर कर दो, 100 डेसिमल्स इग्नोर कर दो, 38 आंसर। सो 3800 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग। अब ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसमें लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ट्रैवल में
क्लोथिंग से कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। सो ट्रैवल में लोग देखेंगे 10 है और क्लोथिंग में 8 है, तो नेचुरल टेंडेंसी होती है 2% मार्क करने की। ठीक है, 2% आंसर नहीं होगा। देखो परसेंटेज इसमें कितना ज़्यादा है, दिस इज 8, दिस इज 10, ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे 2 बड़ा है। सो 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि 25% शुड बी द राइट आंसर। तो मेक श्योर ये ऐसी वाली बेसिक गलतियां ना करो, क्योंकि ये 8 है, 8% है। ठीक है, ये 8 है, तो 8% of this is 10% of this. How much more? It is 2 more. So whenever something is asked what percent more, ठीक है, अगर what percent more या less पूछते हैं, तो your answer should be how much more या less upon more or less than what. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउ मच मोर है, 2 मोर है ना, ये 10 है तो और ये 8 है, तो 2 ज्यादा है। एंड हाउ मच मोर देन क्या पूछा है, मोर देन के बाद जो आता है क्लोथिंग पूछा है, राइट। सो दैट कम्स इन डिनोमिनेटर, सो दैट इज वाई 2/8। तो कॉमन मिस्टेक होती है, जस्ट अवॉइड सच अ मिस्टेक। और पाई चार्ट में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर्स, ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ फूड माइनस अदर्स, ठीक है, तो आप क्या कहते हो, 30 माइनस 22, 8%, 8% ऑफ 30,000 दैट इज 2400, तो सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यूज नहीं निकालनी होती, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन एवरेज कुछ भी करना है परसेंटेज में कर लो, देन मल्टीप्लाई विद द total, you will get the answer faster. So these were certain tricks related to data interpretation which will definitely be helpful to you, right? And I'm sure like after watching this video you must have learned certain new techniques, और आप इन्हें questions में apply करोगे and you will realize कि आप कई तरह के क्वेश्चन जिनमें आप ज्यादा टाइम लगाते थे उन्हें आप जल्दी कर सकते हो, स्पेशली एवरेज बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड और राउंड ऑफ बेस्ड क्वेश्चंस, उन्हें जल्दी किया जा सकता है बाय simply using these techniques. So if you found this video useful, don't forget to like the video and also subscribe to my channel.